तो मुझे ना वो वर्ड स्ट्रगल से तकलीफ है, क्योंकि उसको बहुत हाँ, रोमांटिसाइज किया बिल्कुल, गया है कि बिल्कुल, मैं बिल्कुल। स्ट्रगलर हाँ। हूँ और मैंने बहुत स्ट्रगल हुँ, किया है। आई थिंक आई बीन बॉर्न टू डू दिस। आई थिंक हुँ, आई हैव बीन बॉर्न टू डू व्हाट आई लव। और मैं उसको स्ट्रगल कैसे कह सकता हूँ? रणवीर ब्रार हमेशा, मुझे हमेशा लगता था कि रणवीर ब्रार बहुत अच्छा एक्टर है। पैंडेमिक हाँ। का मेरा बहुत बड़ा साथी था रणवीर ब्रार। आई मेड अ लॉट ऑफ हिज रेसिपीज ड्यूरिंग द पैंडेमिक। हाँ. Good afternoon. Today we have with us the National Award winning director, Mr. Hansal Mehta. His recent offering, The Buckingham Murders, is also always already winning hearts, and in the past too, he's given us masterpieces like Aligarh, Shahid, Scam, and Scoop, to name a few. Get talking to the man himself. Welcome, Mr. Mehta. हाय How's हाय सर। how has it been with Buckingham Murders? Well, it's a tradition. Before my film releases, films or shows, I always set off somewhere, slightly away from the noise surrounding it. Okay. This is no different. I am right now in London Oh, uh, on a break. But whatever I'm hearing is like very, very heartening, yeah. Yes, very indeed. the film is being received really well, and the love that we're getting from the audiences and from your fraternity is Yeah. really, really heartening. Yeah. And so, how was it working with Karina, and why only this subject? Why her only for this subject? I mean, she's always surprised, and you've surprised us with the casting. Uh, you know, See, I think things always fall into place when the intentions are right. Things fall into place. So I signed this film in 2019. I heard the story Oh, way back in 2018, okay. and during the pandemic, it was Ekta spoke to Karina. They'd done films before that. They'd done a couple of films before that. So Hmm. Ekta spoke to Karina. Karina came on a Zoom call with me, and she had already decided to do the film. So she had liked the story, and so and for me, I always felt Karina, vastly underrated, underutilized Yeah. uh, actor. She's a big star, Yeah. but as an actor, yet a lot to be tapped. So here was an opportunity to bring Karina the actor to the people, and it just happened. I mean, I don't think anybody else could have been Jasmeet Bhamra. Hmm. And so, Karina, we've seen, as you said, she's the most underrated actor, not a star. But then she's surprised. She's pleasantly surprised here. And how do you actually go into this process of casting? Because your castings are like apt. If we talk about any of your series in the past, which I will talk in the next question, but this one here. Yeah, I think it's just being authentic and honest with the casting. Hmm. Everybody, all the characters in the mm, uh, in this film are they have been cast from a place of authenticity. There's no motive that, oh, this by having this person I will get more audience or I will get this. I think first thing that the integrity towards the story you're telling and towards the characters that you're portraying on screen, that is important. And I'm glad, I've always worked with like Mukesh Chabra and Shakira Dowling, who worked on the casting of this Hmm. film. They've been exemplary. I mean, they gave me the correct people. And Hmm. I made a very conscious decision when we started the film. I said, I'm not going to make a British film Hmm. uh, with characters from India, all Yeah. speaking Hindi in an alien land. Uh, So it's almost like they've landed on into an alien country in a spaceship. So I will not make that. I will make a film about people who live here, people hmm. who breathe here, people who you feel like you have been thrown into their world. Hmm. That's what's nice. सर और रणवीर ब्रार का कैसे मतलब इट वाज अ Ranveer प्लेजेंट Brar, सरप्राइज मैंने I, देखा ट्रेलर एंड आई एम लाइक अरे रणवीर ब्रार
रणवीर बरार हमेशा, मुझे हमेशा लगता था कि रणवीर बरार बहुत अच्छा एक्टर है। अच्छा। वो जब भी उसकी वीडियोस में, पैंडेमिक हाँ, का मेरा बहुत बड़ा साथी था रणवीर बरार। आई यूज टू सभी आई का। आई यूज्ड यू नो copy a, I made a lot of his recipes during the pandemic. हाँ, I watched a हाँ, lot of his videos, and हाँ, उसमें बीच बीच में ना, in the recipes there were snippets of him talking into camera हाँ, about हाँ, हिस्ट्री and ऑफ। वो history, and then he used 100 different ways of saying कि फिर आप कहोगे रणवीर आपने बताया नहीं, so he, in हाँ, that I said कि यार ये actor है, there's an actor within him. When हाँ, I approached him, I was pleasantly surprised to know that हाँ ही उसको मतलब एक्टिंग करना था। And yeah, I mean it was a absolute joy to work with him, especially Buckingham Murders में बहुत मजा आया, because not only did he perform so well, he was perfect for the character, so authentic, that Punjabi man, you know हाँ, it really, he just somehow fitted into that character, real life में मुझे नहीं लगता ऐसा है वो, but he fit into the character so well. But the bonus was that he was with us for nearly 3 weeks, and he cooked for us. ओह, oh, कई lovely. बार he cooked a lot of food for us, so that was the bonus. And so you've always surprised us with your choice of lead actors. जैसे मैंने पहले बोला, अलीगढ़ में अगर मनोज ले लें आप, शाहिद में राजकुमार ले लें, एंड देन स्कैम, प्रतीक गांधी, फिर सबसे बड़ा सरप्राइज वो फॉर मी वाज स्कूप में, करिश्मा Karishma कपूर। Tanna. Because Karishma ko we have seen on TV, Chulbula, her debut, if you also you would remember, was क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जहाँ से she actually surprised everyone. So आपका, are you actively participating in the the hiring, sorry, the finalizing of actors, या कास्टिंग में मतलब आपका बहुत कितना रोल होता है? मतलब आई फील कि यू गेट द परफेक्ट सो लीड्स। आई एंजॉय कास्टिंग। सो मैं मुकेश तो मुकेश मुझसे बहुत समटाइम्स थक जाता है मुझसे, बिकॉज वी फाइट अ लॉट, वी आर्ग्यू अ लॉट, एंड until we get the right person, even एक सीन के लिए अगर आप कैरेक्टर्स को देखोगे ना, इफ यू लुक एट हम्म। बकिंगम मर्डर्स फॉर एग्जांपल, जो हाँ। एक एक सीन वाले कैरेक्टर्स भी है, मतलब दे आर ऑल गुड एक्टर्स, वो मतलब उनको हुँ, ढूंढ ढूंढ के, इफ यू लुक हाँ, एट द अदर कैरेक्टर्स, जो साकिब बना है, कपिल रेडेकर, हाँ, he's in drama school in London. Manish Gandhi, जो पृथ्वी बना है. So all those characters, I mean, those actors have been cast very carefully. और मुझे हुँ, कास्टिंग में मजा बहुत आता है. I really enjoy the process of कि when you see your character suddenly coming to life. हुँ, Uh, वही casting is a process. See, writing में you give the characters a life, and हुँ, uh, casting में the characters come to life when you या start seeing बिल्कुल। all the faces. So वो हुँ। मतलब वो it's a lovely process. एंड सर आपने 1993 में यू स्टार्टेड विद अ शो, पहली बात तो अ फूड शो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब सैटेलाइट बिल्कुल अपना कदम रख ही रहा था अंदर, एंड दैट टू विद अ मेल होस्ट। तो आपको क्या-क्या चैलेंजेस थे उस टाइम पे, बिकॉज़ लोग सोचते थे खाना है तो एक औरत ही बनाएगी, मेल तो हो ही नहीं सकता। Challenges जो उस वक्त थे वो आज भी है। मैन, challenges जो है वो लोगों की एक फिक्स्ड सोच जो होती है ना, एक धारणा बना हाँ, के बैठते हैं लोग, वो हाँ, धारणाओं से लड़ना जो है ना, वो अपने आप में चैलेंज होता है। मुझे उस वक्त इतना मतलब सुनाया था जी के लोगों ने कि आप कहाँ इसको अच्छा। लेकर आ गए, कि हमको फीमेल चाहिए थी, आप मेल शेफ लेकर आ गए। शूट कर दिया था मैंने उनको बताए अच्छा, बिना। हाँ, एंड वो मतलब वो अभी भी चलता है, लोग ना धारणा लेके बैठे हैं। मुझे कई लोगों ने कहा कि तुमने फिल्म इंग्लिश में बना दी, अब कैसे लोग हाँ, उसको, मैं बोला यार, मतलब जो, अगर उनको एक अच्छी कहानी ऑथेंटिक तरीके से मिल रही है, लोग देखेंगे। ऑडियंस हुँ, भले ही छोटा कम हो जाएगा, लेकिन हुँ, वो कम ऑडियंस भी आएगा और पसंद करेगा और हुँ, अप्रिशिएट करेगा। तो हुँ, मेरे लिए वो जरूरी है। एंड वही हुआ लोगों ने आज फिल्म को जो अप्रिसिएशन मिल रहा है, वो मतलब हुँ, उस धारणा को तोड़ने की वजह से मिल रहा है। हुँ। लोग कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल फिल्म लग रही है, कि कि पहली बार एक फिल्म लंदन में शूट हुई है और लोग मतलब वहीं के लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमने देखा है जैसे लंदन में जो भी मूवीज़ ब वैसे शूट हुई इन द पास्ट, यू एज़ यू सेड कैरेक्टर्स हैव स्पोकन इन हिंदी, बट यहाँ पर नहीं है। इट्स नहीं, हिंदी लाइक में दे स्टिक देयर टू देयर नथिंग रॉन्ग। लैंग्वेज।
या हम्म, नथिंग रॉन्ग इन स्पीकिंग हिंदी, बट आई जस्ट फील कि एक डाइवर्सिटी होनी चाहिए, कि हर हाँ, तरह के लोग होते हैं। हाँ, मतलब लंदन जैसी जगह जो है, इट्स अ मेल्टिंग पॉइंट, मेनी कल्चर्स सॉर्ट ऑफ कम टुगेदर here in one place, and they have their हम्म, own friction, their own cultural differences, which हम दिखाने, मतलब वो डाइवर्सिटी हम दिखाते ही नहीं है। yeah. And so tell us a little about you've been very vocal about your alcoholism, be it your alcoholism fight with it, and then your depression period also. So how was that initial stage of struggle? क्या बीच में भी ऐसा कोई phase था where you felt that यार it's not going my way? नहीं, अक्सर, आई मीन, इट रेजेस इट्स अगली हेड many times, these thoughts. I luckily I never got into clinical depression, or what they call clinical alcoholism. Matlab, Yeah. I had almost reached that point. I had reached that point, but somehow I sought help at the right time. I Mm-hmm. found uh, comfort in my close ones at the right time, and recognized that something was going wrong. And Mm-hmm. so at that time, talking to people, recognizing it, finding help, not being shy of seeking help, is very important. Mm-hmm. And so uh, थोड़ा सा आप अभी आपने अल्कोहल में बट योर स्ट्रगल पीरियड हाउ डिड यू व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? स्ट्रगल बीच पीरियड तो में अभी भी होता है, स्ट्रगल स्ट्रगल अभी भी पीरियड चल रहा है। होता है, कभी ऐसा लगता है? स्ट्रगल तो अभी भी चल रहा है। तो उस, मतलब मुझे ना वो वर्ड स्ट्रगल से तकलीफ है, क्योंकि उसको बहुत हाँ, रोमांटिसाइज किया बिल्कुल, गया है कि बिल्कुल, मैं बिल्कुल। स्ट्रगलर हाँ। हूँ और मैंने बहुत स्ट्रगल हुँ, किया है। मैं हुँ, मानता ही नहीं हूँ। मतलब मैं पिछले 30 साल से जो काम कर रहा हूँ, मतलब मैं, आई थिंक आई बीन बॉर्न टू डू दिस। आई थिंक हुँ, आई हैव बीन बॉर्न टू डू व्हाट आई लव। और मैं उसको स्ट्रगल कैसे कह सकता हूँ? कि बिल्कुल। जिस चीज से को आप इतना बेतहाशा प्यार करते हो, आप उसको स्ट्रगल कैसे कह सकते हो? उसको, उसमें संघर्ष हो सकता है, लेकिन उस संघर्ष में हुँ, भी प्यार है। या so, would you agree with us that people are a bit reluctant to go back to theaters post-COVID? Have they become a bit selective because they're No, getting a lot of opportunities and as in on OTT and everywhere? What do you have to say? well, yes, there is. I mean, we have to admit that there is an alteration in the landscape, Mhm. uh, the ecosystem. There is an alteration, and we are, all of us have embraced it. I think what is important is that we keep telling those stories, and these Mhm. stories keep finding their audiences, and the people who invest in these stories get a return on investment on what they have done. Mhm. That their So, money is kept safe. So yeah. uh, that that's a balancing act that you have to do. Not every film, see this whole thing कि फिल्म की तुलना बॉक्स ऑफिस से करना, Hmm. उसकी उसका अच्छा बुरा बॉक्स ऑफिस की वजह से होना ना होना, वो मतलब एक आर्ट फॉर्म को बहुत ही गिराने वाली बात है, उसको बहुत छोटा करने की बात है। वो छोटी सोच है। हुँ। बट सर हाँ। यू थिंक कि पैसा तो उसी से जब पैसा नहीं आएगा तो फिर आप लोगों को नहीं लगता कि लेकिन मुझे मतलब मुझे एक बात बताइए, पैसे कौन लगा हुँ, रहा है? हुँ, देखने वाला लगा रहा है या बनाने वाला लगा रहा है? बनाने वाला, हाँ, एग्जैक्टली बिल्कुल। exactly। तो वो उनका प्रॉब्लम है। वो लोग, मतलब वो कहाँ से वो पैसा रिकवर करते हैं? देयर आर वेरियस एवेन्यूज ऑफ रिकवरिंग मनी। हुँ, और इस हुँ, चीज को जो लोग ये सब नंबर्स फैलाते हैं, वो जानते ही नहीं है, या जानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको मजा आता है नंबर के बेसिस पे ये कहना। मतलब आप एक आदमी के के लुक्स को उसकी हाइट से अगर तुलना करोगे तो कैसा हुँ, लगेगा? है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो हुँ, मतलब अगर वो करते तो क्या आमिर खान और सलमान खान इतने बड़े स्टार्स होते? बिल्कुल, बिल्कुल, तो हाँ। उसी तरह से ना, मतलब फिल्म की कद को छोटा करना बॉक्स ऑफिस के जरिए, मतलब वो मुझे लगता है नाइंसाफी है एक आर्ट फॉर्म के साथ। एंड सर ओटीटी आने के बाद डू यू फील दैट पीपल आर फाइंडिंग इट अ मोर सेफर प्लेस बिकॉज़ यू डोंट हैव टू देन थिंक अबाउट द एज़ यू सेड द और रिटर्न्स पार्ट? नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैदान बड़ा हो गया। इट इज अच्छा, वाइडेंड, हाँ। कि फिल्म्स फाइंड देयर ऑडियंस हुँ, either हुँ। in the cinema halls or in the OTT or in both.
तो उसका Hmm. ना मतलब वो, आई थिंक इट्स नॉट वन अगेंस्ट द अदर। मतलब Mhm. वी जस्ट, द ऑडियंसेस हैव मेनी मोर चॉइसेस। एंड यस, कई बार होता है कि भी क्योंकि ओटीटी पे आने वाली होती है, लोग थिएटर जाते नहीं है। लेकिन Hmm. वो अब मतलब धीरे धीरे से वो भी बदलेगा। सी, Mhm. मार्केट्स जो होते हैं वो अपने आप करेक्ट होते हैं। लेकिन Hmm. उसमें जो मतलब जो एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञ होते हैं ना, सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं समझते मार्केट को। Hmm. सो स्कैम जो थी, स्कैम के आने पर मतलब फिनोमिनल थी। पीपल वर रिलक्टेंट टू वॉच इट, बट देन व्हेन दे वॉच्ड इट, इट वाज लाइक इट बिकेम अ रेज। सो व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स डिड यू गेट? आई नो इट वाज फिनोमिनल, बट उसके बाद आपका क्या चेंज हो गया कि क्या आपको इसी सीरीज में बनाना, जैसे तेलगी आया, स्कूप आया, तेलगी भी हाफ ही मुझे ऐसा लगा कि आया, और मतलब स्कूप आया, तो क्या आपको लगा कि यू आर गोइंग इनटू दैट डायरेक्शन ओनली, कि एंड नाउ नहीं विद नहीं, ऐसा नहीं मर्डर? है। मतलब मैं वो करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। हम्म। जो जो कहानी मैं कहना चाहता हूँ, जिस स्कूप की कहानी मुझे बहुत, मैंने स्कैम से पहले वो कहानी साइन की थी। अच्छा। आई साइन दैट शो, एंड मुझे वो कहानी मतलब आई फाउंड इट वेरी वेरी पावरफुल। इसलिए हाँ, मैंने इट कही। वाज। इट वाज हम्म। ऑल्सो, इट वाज अ कमेंट ऑन मीडिया एंड व्हाट इट हैज बिकम, या। स्पेशली द प्रिंट मीडिया जिसको हम भूल चुके हैं। हाँ, तो वो बिल्कुल। मतलब वो बहुत सारी चीजें मुझे एग्जामिन करने मिल रहा था उस शो के जरिए। तो वो मैं वही करता हूँ जो जो मतलब मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे, जो कहानी कहने का, कि जिसमें मुझे कैरेक्टर्स, एक तरह की सोशल रियलिटी दिखती है, जिसको मैं अपनी कहानियों के जरिए बता सकता हूँ। मैं वही कहानियां कहता हूँ और कहते रहूंगा जब तक मुझे सर, इंडस्ट्री मौका देगी। बिल्कुल। सर, स्कैम के बाद पीपल हैड स्टार्टेड एक्चुअली sympathizing, I would rather say empathizing with हंसल मेहता। सो नहीं, हंसल आपको मेहता के कुछ साथ तो फीड? हंसल मेहता के साथ तो करना ही चाहिए। हर्षद मेहता, सॉरी। माय नहीं, मिस्टेक। मुझे तो मुझे मैंने द ओनली थिंग आई डिड विद हर्षद मेहता वाज, आई नीदर डिड आई डिमोनाइज हिम नॉर डिड आई या। glorify him. I think हाँ। what we did in Scam was we humanized a character जिसके around myth बना हुआ था। हम्म। हम्म। And people, this is very psychological. People like an anti-hero, somebody who goes against the system. तो वो थोड़ा सा, हम्म। but nowhere in the show did we try to make him into कि जो काम उसने गलत किए वो हमने वैसे ही दिखाए। हम्म। He tried to trick the system, tried to go against the uh, law of the time, the system of the time, and उसमें मतलब he paid for it. He paid for it हम्म। very dearly. So I think the overall messaging was correct. लोगों ने, people take their own messages from these stories, what they हम्म। like to see. So he was a fascinating character, and I think that became popular. The character became popular, not his Became very deeds. popular. Not Yeah. his deeds. Yeah. And so you're making Gandhi. तो did you have in mind कि यार रिचर्ड एटनबरो वाली मूवी से कहीं कंपैरिजन होगा, क्योंकि गांधी मूवी हैज बीन मेड इन द पास्ट एज वेल। सो Comparisons मेरे लिए नए नहीं है। आज मतलब मेरी फिल्म जो रिलीज हुई है उसको लोग मैन ऑफ ईस्टर्न हाँ। बार बार से। बोल रहे हैं, मतलब वो, हाँ। और मैं मतलब उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूँ। कि एक फिल्म को आपने शो के साथ कंपेयर कर लिया, हाँ। तो मेरे शो को अभी आप फिल्म के साथ कंपेयर करोगे। लेकिन वो मतलब अलग लोग अलग कहानी बनाते हैं। और मतलब मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि भाई 2018 में असीम अरोरा मेरे पास इस कहानी को लेकर आए थे। तो क्या असीम अरोरा की कहानी को मैर ऑफ ईस्टर्न वालों ने उठाया है? ऐसा नहीं हाँ। हो सकता है भाई। ग्रीविंग मदर का एक थीम है, इट डजंट बिकम द सेम फिल्म। कहानी अलग है, कैरेक्टर्स अलग है। मतलब हम्म। ये बहुत ही छोटी छोटी सोच, छोटे दिमाग का वो है, छोटे छोटे दिमाग की उपज है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच थैंक फॉर दिस यू। लवली टॉक।